Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MBBS platform. Today we discuss the brachial plexus, the very important topic about the examination point of view, MCQs, Viva and SCQs. Brachial plexus, brachial derived from the brachium mean arm, and plexus mean the network of nerve. Brachial plexus consists of root, trunks, divisions, cords, and branches. Roots and cords are the supraclavicular part of the brachial plexus and present above to the clavicle. Divisions are the retroclavicular part of the brachial plexus that present posterior to clavicle, and the cords and the branches are the infraclavicular part that present below to the clavicle. Roots. These are constituted by the anterior primary rami of the spinal nerves of C5 to C8 and T1 with the contribution of T2 and C4. The origin of plexus may shift one segment upward or downward, resulting in prefixed or post-fixed plexus respectively. मतलब अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व करता है T2 को, तो उससे पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस कहेंगे या पोस्ट फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन कहेंगे. अगर वो C4 को इन्वॉल्व करता है तो उसे प्री फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन कहेंगे. इन ए प्री फिक्स्ड plexus, the contribution of the C4 is large, C5 present, T2 absent. In a post-fixed contribution, T1 large, T2 present, C4 absent, and C5 reduced. Now we discuss the trunks. Roots join to form the trunks. Trunks are three in number. C5 and C6 root join to form the upper trunk, and C5 form the middle trunk. C8 and T1 form the lower trunk. And every trunk divide into two divisions, and in total there are 6 divisions. C5 and C6 form the upper trunk, and the upper trunk divide into the anterior and posterior division. C7 root form the middle trunk, and it is divided into the anterior and posterior division. And C8 and T1 join to form the lower trunk, and lower trunk divided into the anterior and posterior division. Here we can see the chords. There are three chords that join that formed by the union of divisions. Later chord formed by the union of the anterior division of the anterior or the ventral division of the upper trunk and the middle trunk. Anterior division of the upper trunk and anterior division of the middle trunk join to form the lateral cord. The posterior division of the upper trunk and the posterior division of the middle trunk and the posterior division of the lower trunk join to form the posterior cord, and the anterior division of the lower trunk form the medial cord. The root values of the nerves arises from the lateral cord have the C5, C6 and C7, and the medial cord C8 and T1, and the posterior cord there is an exception C5 and C6. Branches of the roots. Nerve to there are four branches arises from the roots. Nerve to serratus anterior, लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी उसे कहते हैं. उसकी रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7. सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को, जो कि ओवरहेड अबडक्शन करवाता है. दूसरी जो ब्रांच निकलती है वो नर्व टू रोम्बॉइड है. इसे डोर्सल स्केपुलर नर्व भी कहते हैं, डोर्सल स्केपुलर नर्व भी कहते हैं. उसकी रूट वैल्यू C5 है और वो सप्लाई करती है रोम्बॉइड माइनर को और मेजर को, जो कि रिट्रैक्शन करवाते हैं शोल्डर गिल्डल. जो कि तीसरी ब्रांच निकलती है वो होती है ब्रांच टू द लोंगस कुलाई एंड स्क्लेनाई मसल. उसकी रूट वैल्यू C5 to C8 है. ब्रांच टू फ्रेनिक और उसकी रूट वैल्यू C4 होती है, लेकिन C5 भी में इन्वॉल्व होती है स्मॉल.
उसे वो सप्लाई करती है थ्रोको एब्डोमिनल मसल जो डायाफ्राम को सप्लाई करती है। वो कैरी करती है एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द मेडिएस्टिनल पेल्यूरा, fibrous pericardium and a peritoneum. Branches of the trunk. Only upper trunk have the branches. There are two branches that arises from the upper trunk, uh, suprascapular and nerve to subclavius. Suprascapular have a root value C5 and C6 and supply the supraspinatus and infraspinatus, and its nerve to subclavius have a root value C5 C6 and supply to the subclavius muscle may give root, and nerve to subclavius may give root of the phrenic nerve. Branches of the cords. हमने ब्रांचेज ऑफ रूट्स भी पढ़ ली, ब्रांचेज ऑफ ट्रंक्स भी पढ़ ली। अब हम ब्रांचेज ऑफ कोर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और कोर्ड्स कितनी होती है? तीन होती है। लेटरल कोड होती है, मीडियल कोड होती है और पोस्टीरियर कोड होती है। लेटरल कोड में से जो ब्रांचेस निकलेंगी और उनकी रूट वैल्यू वो याद रखनी है, और मीडियल कोड से जितनी ब्रांचेस निकलेंगी और उनकी रूट वैल्यू वो याद रखनी है, और इस तरह पोस्टीरियर कोड से जो भी ब्रांचेस निकलेंगी और जो भी नर्व्स निकलेंगी उनकी रूट वैल्यू याद रखनी है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रांचेज ऑफ द लेटरल कोड, उनको हम LML से मतलब याद रखते हैं, और उन सब की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5 से C7, C5, C6 एंड C7 से LML। L जो होती है वो लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है, M जो होती है वो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व होती है, और L जो होती है वो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है। अब जो लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू, इन सब की रूट वैल्यू C5, C6, C7 है। और ये जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो पेक्टोरलिस मेजर को और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। और जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो किसको? मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। उसमें क्रोकोब्रैचियलिस आ जाता है, बाइसेप को आ जाता है और ब्रेकियलिस आ जाता है। बाइसेप्स के दोनों हेड्स आ जाते हैं, शॉर्ट हेड्स भी और लॉन्ग हेड। अब जो लेटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व है वो ज्वाइन करती है मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व को और फ्रंट ऑफ द फोर आर्म और थिनार जो होते हैं ना, ये वाला मसल है ना आर्म का, ये जो उभरा हुआ प्रोमिनेंट मसल है ये थंब का, उसको सप्लाई करती है। अब आते हैं मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेज हैं उसको हम 4MU से याद रखते हैं, और इन सब की रूट वैल्यू जो होती है वो C8 और T1 होती है, एक्सेप्ट अल्नर की। अल्नर में C7 भी इन्वॉल्व होती है। अब 4MU कौन से? मतलब 4M होते हैं और एक U होते हैं। 4M कौन से? एक होता है मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि पेक्टोरलिस मेजर को और माइनर को सप्लाई करती है, और एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो कि स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है। और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करती है। और अल्नर नर्व जो होती है वो 1.5 ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म के मसल को सप्लाई करती है, और 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम को सप्लाई करती है। तो जो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ पाम होते हैं उसमें ज़्यादातर T1 फाइबर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। जो C7 फाइबर्स है वो एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व से एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है और वो ज्वाइन करती है अल्नर नर्व को। तो इस वजह से वो C7 फाइबर्स भी अल्नर नर्व में इन्वॉल्व होते हैं। नो वी डिस्कस द 4M, मतलब हम चौथी M को डिस्कस करते हैं, मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। अब मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व पहले भी हमने पढ़ा है कि वो लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व को ज्वाइन करेगी, और वो ज़्यादातर फोर आर्म को थिनार एमिनेंस को ना वो सप्लाई करते हैं। अब जो होती है ना लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, उसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C6 और C7 होती है। और जो होती है मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व उनकी रूट वैल्यू होती है C8 और T1। इस तरह जो मीडियल नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C8 एंड T1। पोस्टीरियर कॉर्ड, नो वी डिस्कस द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। उसको हम ना इससे अल्नार से याद रखते हैं, और उनकी सब की रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6। लेकिन इसमें लेटस्मस डोर्स आया उसकी होती है C6, C7 और C8। और इधर रेडियल नर्व है उसकी होती है C5 to C8 एंड T1। अल्नार अपर अपर सबस्केपुलर नर्व जो कि सप्लाई करती है सबस्केपुलरिस
जो कि मल्टीपेनेट मसल होता है उसको सप्लाई करती है। उसके बाद आते हैं लोअर सबस्कैपुलर नर्व, जो कि सबस्कैपुलरिस को और टेरिस मेजर को सप्लाई करती है। और इसके बाद आता है नर्व टू स्ट्रेटस इंटीरियर, नहीं सॉरी, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, जिसे थोरैको डोर्सल नर्व भी कहते हैं, वो सप्लाई करता है लेटिसमस डोर्साई को। इसके बाद जो एन है, एन भी हो गया। अब जो ए है, ए एक्सिलरी नर्व है, जिसे सर्कमफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ना वो जो होता है ह्यूमरस का ये सर्जी वाली नेक होती है, उसको ये इस तरह से सर्कमफ्लेक्स किया होता है, इसलिए इसे सर्कमफ्लेक्स नर्व भी कहते हैं। ये डेल्टाइड को, टेरिस मेजर को और शोल्डर और टेरिस माइनर को, सॉरी, टेरिस माइनर को सप्लाई करती है और शोल्डर के मसल्स को भी सप्लाई करती है। इसके बाद आता है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो होती है वो थिकेस्ट ब्रांच होती है किसकी, ब्रेकियल प्लेक्सस की, और उसकी रूट वैल्यू जो C5 to C8 और T1 होती है। ये 12 मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करती है और 3 हेड्स ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई मसल्स को भी सप्लाई करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई टू ब्रेकियल प्लेक्सस, उसको हम याद रखते हैं VTST। ये जो 4 आर्टरीज हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सस को सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है, और इसे लाइफ लाइन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी कहते हैं। और वी जो है उसे कहते हैं वर्टिबुलर आर्टरी। टी जो होती है वो थायरो सर्वाइकल आर्टरी होती है, और एस जो होती है सब स्केपुलर आर्टरी होती है, और टी जो होती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी होती है। दैट्स ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सस। आई होप यू अंडरस्टैंड माई एफर्ट अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। जज़ाकल्लाहु खैर।